السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، ہم نے SY BA کے کلاسز شروع کر چکے ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ نے لیکچر سنا، دیکھا، اس کے نیچے دیے گئے نوٹس بھی آپ نے لکھے، اور آئندہ بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی نوٹس روانہ کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے جو پیپر پڑھا تھا وہ پیپر نمبر 2 تھا اور سیمسٹر نمبر 3 تھا۔ آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ پیپر نمبر 3 ہے۔ SYBA اردو۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے تھے پیپر نمبر 2 پڑھ چکے تھے، لیکن آج ہم کو جو پڑھنا ہے وہ پیپر نمبر 3 ہے۔ SYBA اردو پیپر نمبر 3 اور سیمسٹر جو ہے وہ بھی کیا ہے، سیمسٹر نمبر بھی 3 ہے، یعنی تیسرا سیمسٹر ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ SYBA اردو پیپر 3 اور سیمسٹر بھی 3۔ اس سے پہلے ہم نے خطوط نگاری دیکھا تھا، اور خطوط نگاری کس طرح سے مرزا غالب نے کی، انہوں نے کس طرح سے خطوط لکھے، وہ ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں۔ اب اس کو بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں۔ جب سر سید احمد خان کی نثر اور ان کی خطوط دیکھیں گے تو وہ انشاءاللہ پھر سے اس طرف چلے جائیں گے۔ لیکن آج جس ٹاپک کو ہم کو پڑھنا ہے، جس ٹاپک کے بارے میں آج ہم معلومات لیں گے، حالانکہ اس کی ابتدائی معلومات آپ کو بھی ہے، لیکن پھر بھی یہاں ہم BA میں آئے ہیں تو اس کی مفصل اور تفصیلی معلومات یہاں آپ کو فراہم کی جائیں گی۔ پیپر نمبر 3 میں سیمسٹر نمبر 3 ہے، اور اس کا عنوان ہے اردو غزل۔ کیا ہے؟ اردو غزل۔ اور آپ جانتے ہی ہیں کہ اردو غزل ایک بہت مشہور صنف ہے، اور آج بھی اس کو اتنی چاہت سے سنا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، اور اس کے چاہنے والے آج کروڑوں نے بلکہ انگنت لوگ آج دنیا میں موجود ہیں۔ جہاں مشاعرے ہوتے ہیں وہاں کی تعداد کو آپ دیکھیں گے تو مشاعروں میں جو تعداد ہوتی ہے صرف اردو یعنی اردو لکھنے اور اردو پڑھنے والوں کی نہیں ہوتی، بلکہ عام آدمیوں کی بھی ہوتی ہے، جن کا تعلق اردو زبان سے بالکل نہیں ہوتا، لیکن اردو کی چاشنی اور یعنی غزل کی چاشنی اور غزل کی محبت اتنی ہوتی ہے اور اتنی شہرت ہوتی ہے کہ لوگ اس مشاعرے میں دور دراز کا سفر طے کر کے وہاں پہنچ جاتے، جس میں مذہب و ملت کا کوئی فرق نہیں ہوتا، زبان کا بھی کوئی فرق نہیں ہوتا، بلکہ اردو کی محبت میں لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ لہذا آج اسی کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اپنی کتاب ہے منتخب اصناف ادب۔ یہ کتاب ہماری SYBA کے لیے ہے، پیپر 2 کے لیے بھی اور پیپر 3 کے لیے بھی۔ آئیے دیکھتے ہیں اس میں جو پہلا عنوان ہے یا پہلا ابتدائی حصہ ہے، اس کا نام ہے اردو غزل۔ صفحہ نمبر دیکھیں گے، صفحہ نمبر 6 پہ اردو غزل کا ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ اردو غزل کسے کہتے ہیں؟ غزل ہوتی کیا ہے؟ غزل کے کیا کیا حصے ہوتے ہیں؟ یہ اس سے پہلے ہم پچھلی جماعتوں میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ 11ویں 12ویں میں تو الحمدللہ تفصیلی معلومات حاصل کر چکے ہیں، اور اس سے پچھلی جماعتوں میں بھی تمام معلومات آپ پڑھ چکے ہیں۔ پھر بھی غزل اور نظم جو ہوتی ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، کیونکہ آئندہ ہم کو جب پیپر 3 میں ہی سیمسٹر 4 پڑھنے جانے والے ہیں تو اس میں جو رہے گا 4 میں اس میں نظم نگاری رہے گا، لیکن یہاں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ غزل ہے۔ تو غزل اور نظم میں سب سے اہم جو فرق ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ دیکھیے، ایک طرف نظم ہے اور ایک طرف غزل ہے۔ اب اس کا بنیادی جو فرق ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ دیکھیے، کیونکہ تاکہ ہم کو نظم سمجھنا بھی آسان ہو جائے اور غزل کا سمجھنا بھی آسان ہو جائے۔ نظم اور غزل میں جو سب سے بڑا فرق ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ نظم میں جو اشعار ہوتے ہیں وہ پہلا شعر دوسرے شعر سے منسلک ہوتا ہے، یعنی جتنے بھی اشعار ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں، ان کا تعلق پہلے شعر کا تعلق دوسرے شعر سے، دوسرے شعر کا تیسرے سے، یعنی تمام جو اشعار ہوتے ہیں ان کا تعلق ایک دوسرے شعر سے، اشعار سے ہوتا ہے۔ اور تسلسل کے ساتھ نظم کسی ایک عنوان پر لکھی جاتی ہے، کسی ایک عنوان پر لکھے گئے اشعار کے مجموعے کو نظم کہتے ہیں۔ کسی ایک عنوان پر لکھے گئے اشعار کے مجموعے کو ہم کیا کہیں گے؟ نظم کہیں گے۔ لیکن غزل کا معاملہ الگ ہوتا ہے، جدا ہوتا ہے، علیحدہ ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے۔ غزل کا ہر شعر مانوی اعتبار سے
अपनी यानी मीनिंग के एतबार से, मानवी एतबार से अलग अलग होता है, जुदा जुदा होता है। जैसे पहला शेर है, जिस शेर में अगर जमीन की कोई बात हो तो जरूरी नहीं कि दूसरे शेर में भी जमीन ही की बात हो, या तो आसमान की होगी या जमीन के नीचे की होगी या कहीं और की बातें होगी, लेकिन अलग अलग यानी हर शेर मानवी एतबार से जुदा जुदा होता है, जुदा गाना होता है, अलग अलग होता है। उसकी अहमियत या उसकी जो लिखी गई चीजें हैं या बातें हैं, उसमें जो ख्यालात होते हैं वो अलग अलग होते हैं। नज़म और गजल में ये फर्क होता है। अब गजल में जो होता है, पहला शेर जो होता है हमेशा क्या होता है बोलो, मतला होता है। अक्सर अपने मुशायरों में सुना होगा, जब शोराए कराम स्टेज पे तशरीफ लाते हैं तो हमेशा कहते हैं कि गजल का मतला पेश की खिदमत है। तो मतला यानी पहला शेर। अब मतला इसलिए कहा जाता है उस शेर को, पहले गजल के पहले शेर को मतला भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका पहला जो शेर होता है उसके दोनों मिसरे, क्योंकि दो मिसरे मिलाकर एक क्या होता है, शेर होता है। तो उसके गजल के पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं, जिसको अंग्रेजी में राइमिंग वर्ड्स कहा जाता है, इस्तेमाल कहते हैं। अकील है, शकील है, खलील है, जलील है, ऐसे जो अल्फाज होते हैं हम काफिया होते हैं, जो कानों को सुनने के लिए बहुत अच्छे लगते हैं। और राइमिंग वर्ड्स आने पर ही ज्यादातर लोगों के हाथों से तालियां बजती है और शोहरत होती है, वाह वाह होती है, लोगों को शेर पसंद आते हैं ज्यादातर राइमिंग वर्ड्स पर। अब पहला जो शेर होता है वो मतला कहलाता है, इससे कि उसके दोनों मिसरे क्या होते हैं, हम काफिया होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि उसका दूसरा शेर जो रहता है उसके भी दोनों मिसरे क्या होते हैं बोलो, हम काफिया होते हैं, जिसकी वजह से उस शेर को हुस्ने मतला कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, हुस्ने मतला कहते हैं। पिछली जमातों में आप पढ़ चुके हैं, एक फिर से याद दहानी के लिए कहाँ जाए, आपको कहाँ जा रहा है, वरना आप तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी हुई बातों को याद रखने वाले तुलबा है, क्योंकि आप तालिबात है, क्योंकि आप अभी एसवाई में है, डिग्री कॉलेज में अल्हम्दुलिल्लाह तालीम हासिल कर रहे हैं। उसी के साथ जो गजल होती है उसका आखिरी जो शेर होता है, वो आखिरी शेर में अक्सर शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, तो उसको मक्ता कहते हैं। लेकिन कभी ऐसा भी होगा कि शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल ना करे तो उसको मक्ता नहीं कहेंगे, उसको भी मक्ता कहेंगे, क्योंकि मक्ता बना है कथा से, और कथा कहते हैं काटने को, कथा कहते हैं काटने को। अब किसको काटना, किसको कथा करना, क्या करना, इसका मतलब होता है अपनी बात को मुनकते करना। कथा बना है मुनकते से, मुनकते यानी डिस्कनेक्ट करना। जैसे आप मोबाइल पे बात कर रहे हैं, अचानक बात कट हो जाती है तो हम फौरन कह देते हैं कि बात डिस्कनेक्ट हो गई, या फिर बात जो चल रही थी वो मुनकता हो गई, बीच में ही रोक दी गई। तो यहाँ शायर की मुराद रहती है कि शायर जब आखिरी शेर पेश करता है तो वो अपनी बात को मुनकते करता है, मुकम्मल करता है, कता करता है, खत्म करता है, रोक देता है। तो इसलिए उस आखिरी शेर को क्या कहा जाता है, मक्ता कहा जाता है। तो उसमें तखल्लुस इस्तेमाल करे या ना करे, आमतौर पर तो यही कहा जाता है कि उसमें मक्ता है, तखल्लुस होता है, इसके लिए उसको मक्ता कहते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी वो तखल्लुस शायर इस्तेमाल न भी करे आखिरी शेर में, तब भी वो शेर मक्ता कहलाएगा, क्योंकि वहां बात शायर अपनी मुनकते करता है, शायर अपनी बात वहां मुकम्मल करता है, शायर अपनी बातों को वहीं पे रोक देता है और ख्यालात को वहीं पे रोक देता है, इसलिए उसको क्या कहेंगे, मक्ता कहा जाएगा। अब देखिए शुरू करते हैं सफा नंबर 6 पे, और उसमें जो जो चीजें हैं वो आइंदा आगे आती रहेंगी कि गजल किसे कहते हैं। अब जैसे नज्म कहा जाता है तो लोग नज्म के बारे में अलग अलग तारीफें देते हैं, हमद किसे कहता है उसकी तारीफें होती है। अब इसकी अगर तारीफ देखना है तो आमतौर पर आपकी जुबान में या आम जुबान में जो तारीफ इस्तेमाल की जाती है, कही जाती है, वो तारीफ क्या रहती है, वो तारीफ ये रहती है कि औरतों से बातें करने को गजल कहते हैं, औरतों के हुस्न सरापा को या अपने महबूब के हुस्न सरापा को बयान करने को क्या कहते हैं, गजल कहते हैं। ये तमाम बातें, ये तमाम तारीफें हम पहले से देखते या मतलब सुनते आए हैं, याद करते आए। अब गजल जो है इब्तिदाई दौर में जो गजल होती थी, उस गजल में हुस्न, इश्क, आशिकी, बुलबुल की दास्तान, गुल और बुलबुल की दास्तान होती थी। लेकिन आगे चलते चलते जैसे जैसे तकाजे बढ़ते गए, जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती गई, जैसे जैसे लोग तरक्की करते गए, तो इस गजल ने वो रूप धारा है, वो रूप इख्तियार किया है कि गजल में हालाते हाजिरा की बातें और जो मौजूदा उन्वानात है, जो मौजूदा मसाइल है, उन मसाइल को भी आहिस्ता 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 गजल में समोया गया, जिसकी वजह से वो अभी जिंदा जावेद है और आइंदा भी वो जिंदा व जावेद रहेगी। क्योंकि लोगों की दिलों की धड़कन जो होती है वक्त के एतबार से, वो धड़कन की खनक या उस धड़कन की आवाज हमें गजल में सुनाई देती है। कुछ भी हालात हो,
कोई कैसे भी हालात हो, सैलाब आ जाए या कोई और हादसा आ जाए या कोई और मुसीबत आ जाए या कोई और मसला आ जाए, तो उन तमाम मसाइल का हल भी और तमाम मसाइल का जिक्र भी शोरा इकराम अपनी गज़ल में अच्छे अंदाज से करते हैं। और यूँ महसूस होता है कि हमारे दिलों की बात शोरा इकराम अपने कलम से अपनी गज़ल में कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हमको गज़ल में देखने मिलती है। अब गज़ल की तारीफ में कि औरतों से बातें करना गज़ल कहा जाता है। अब गज़ल जो बना है वो गज़ाल से बना है और अलग अलग उसकी तारीफें लिखी गई है कि जब सयाद या शिकारी, शिकार करने वाला जब जंगल में चला जाता है और अपने साथ कुत्तों की टोली जो रहती है, जो सिखाए हुए ट्रेनिंग के तरबियत याफ्ता जो कुत्ते होते हैं, उनको लेके जब वो जंगल में चले जाते हैं और जंगल में चले जाने के किसी हिरन को चारों तरफ से कुत्ते घेर लेते हैं, ट्रेनिंग दिए हुए, तरबियत दिए हुए कुत्ते। तो घेरने के बाद जो हिरन की चीख निकलती है, पहली चीख निकलती है, उस चीख को भी क्या कहते हैं? गज़ल कहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें गज़ल बना है, गज़ल से गज़ल कहते हैं हिरन को। तो इस गज़ल को हम शुरू करने जा रहे हैं। गज़ल की मुख्तसर तारीख हम यहाँ देखेंगे, गज़ल की अहमियत देखेंगे, फिर उसके बाद फ़ानी बदायूं जो शायर है उनके बारे में मालूमात लेंगे और आइंदा के लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला फ़ानी बदायूनी ने जो गज़लें हमारी सिलेबस में फ़ानी बदायूनी की जो दी गई है उनका भी इंशाअल्लाह मुताला करेंगे। सफ़ा नंबर 6 पे देखो, गज़ल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अब जो अल्फाज उर्दू ज़ुबान में आए हैं ये अलग अलग ज़ुबानों से आके उर्दू में समोए हैं और उर्दू के हुस्न को उसने उन ज़ुबानों ने दोबाला किया है, हुस्न को बढ़ाया गया। इस उर्दू ज़ुबान में कभी हिंदी के भी अल्फाज मिलेंगे, अंग्रेज़ी के भी अल्फाज मिलेंगे, मराठी के भी अल्फाज मिलेंगे, दक्कनी जो इब्तिदाई जो शक्ल थी उसकी दक्कन की, उसके पूरे के पूरे अल्फाज हमें यहाँ देखने मिलेंगे। इसके लिए उर्दू ज़ुबान को लश्करी ज़ुबान कहा जाता है। फिर उसके बाद और इसके लुग़वी माने है औरतों से बातें करना। अब लग है लुग़वी माने। अब लुग़वी माने के माने आते हैं कि लुगत के माने। अब अगर लुगत खोल के देखेंगे तो लुगत में गज़ल के माने आते हैं औरतों से बातें करना, औरतों से गुफ्तगू करना, जो यहाँ दिया गया है। औरतों की बातें करना, या फिर कभी ऐसा भी कहा जाता है कि औरतों की बातें करना या औरतों से बातें करने को भी क्या कहा जाता है? गज़ल कहा जाता है। यहाँ इसमें इसकी तारीफ में बताया जा रहा है। इस सिन्फ को गज़ल का नाम इसीलिए दिया गया था कि हुस्न और इश्क ही इसका मौजू होता था। पुराने दौर में आपने देखे होंगे कि जहाँ गज़ल का नाम सुनते थे तो लोग वाह वाह ज्यादा करते थे, सिर्फ इसलिए कि उसमें जो वाक़यात होते थे वो गुल और बुलबुल की दास्तान, मतलब हीर रांझा या फिर लैला मजनू, ऐसे लोगों के ज्यादातर वाक़यात होते थे। और अशआर जो हुआ करते थे वो अशआर कैसे हुआ करते थे कि उसके अंदर इश्किया बातें ज्यादा होती थी, इश्क आशिकी की बातें ज्यादा होते थे। तो इब्तिदा में ऐसा मामला था, लेकिन आगे चलकर देखो उसने कौन सा रूप धार लिया। लेकिन गजल में सिर्फ हुस्न इश्क की मज़ामीनी नहीं होते, इश्क के अलावा हयात व कायनात से ताल्लुक रखने वाली कोई बात भी गजल के शेर का मौजू हो सकती है, बल्कि होती है। जैसे हालात बदलते रहते हैं उस तरह ये गजल भी अपने रुख बदलती रहती है। बदलती रहती मतलब है उसकी जो भी चीज है वो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन उसके अंदर हालात हाजिरा का जिक्र आता है। बारिश ज्यादा हो जाए तो बारिश पे नज़्म आ जाए, कुछ अशआर आ जाते हैं जो गजल में क्या हो जाते हैं, यानी गजल का रुख इख्तियार कर लेते हैं। कभी कोई अचानक कोई हादिसा हो जाता है तो दिलों में जो आने वाली बातें हैं, ये ख्यालात है, शोरा इकराम उसको गजल में उसका गजल में उसको रूप दे देते हैं, गजल को उसको क्या देते हैं, रंग देते हैं, और जो हर खास व आम की जुबान पर शुरू रहती है। गुजरते वक्त के साथ साथ इसके मौजूआत में वुसअत पैदा होती गई। जैसे जैसे हालात आगे बढ़ते गए इसकी वुसअत फैलती गई, नहीं वसी होता, यानी गजल का उन्वान वसी होता चला गया, गजल का मैदान वसी होता गया, और हर एक दिलों में ये जो गजल है वो बसती चली गई और लोगों को गजल कहना लिखना बहुत पसंद आने लगा। फिर उसके बाद और आज गजल में हर तरह के मजमून को पेश करने की गुंजाइश है। आज ये गुंजाइश रखी गई है कि गजल में किसी भी उन्वान को अच्छे अंदाज में, सलीके में, अच्छे रंग रूप में और बिल्कुल निखार कर हम गजल के रूप में ढाल कर उसको पेश कर सकते हैं। जब लोगों के सामने गजल पेश की जाती है तो लोगों के दिल से आह निकलती है, आह नहीं निकलती बल्कि वाह निकलते। अगर आह निकलना हो तो आह के लिए कुछ अशार अलग होते हैं, जैसे मीर तकी मीर के अशार होते थे, तो ऐसे अशार मीर तकी मीर के दिल से निकलते, वो आह वाले होते थे। लेकिन कुछ अशोरा कराम ऐसे है, मीर तकी मीर के आह वाले भी थे, लेकिन वो
हालात जो उनके ऊपर गुजरे थे, जो हालात उनके जिंदगी पे आए थे, उन्होंने उसको क्या किया, पेश किया था। इसके लिए उसमें से आह निकलती है या यास निकलती है, यानी नाउमीदी की बातें निकलती है। लेकिन कुछ शोराए करम आज भी देखो आप, जब मुशायरा होता है तो जैसे ही शायर स्टेज पे तशरीफ लाते हैं तो फौरन लोगों के ने उनका शेर सुनने से पहले वाह वाह शुरू कर देते हैं। तो उनके शेर क्या होते हैं, वाह होते हैं, यानी किसी का शेर आह होता है, किसी का शेर वाह होता है। लेकिन आह और वाह जो शेर होते हैं ये दिल की कैफियत होती है, आवाम की कैफियत होती है, इंसान के दिल की बात होती है। शोराए कराम बड़ी कामयाबी के साथ, बड़ी मेहनत के साथ, बड़े लगन के साथ उसको लोगों तक पहुंचाते हैं। हर एक कहता है कि जो बात शायर ने कही है ये मेरे दिल की बात है, यानी उसके दिल पर बात क्या हो जाती है, असर करती है। फिर उसके बाद के मजमून को पेश करने की गुंजाइश है। गजल की इब्तिदा अरबी में हुई, वहां से ये ईरान पहुंची और फारसी शोरा ने उसे परवान चढ़ाया। लेकिन हकीकी मानों में उसने उर्दू जुबान में सबसे ज्यादा तरक्की की और एक तरह से उर्दू अदब की जान बन गई है। यानी जहां भी उर्दू अदब का नाम आता है फौरन लोगों के जहन में सवाल गजल का आ जाता है और बात गजल की होती है, शायरी की बात होना शुरू हो जाती है। तो इब्तिदा में ये कहाँ आई थी, पहले अरबी जुबान में आई, वहां से फिर फारसी में चली गई। वहां के ईरान के शोराए कराम ने उसको बहुत ज्यादा अहमियत दी, उसके ऊपर गजलें लिखी और उसको इस सिन्फ को बहुत ज्यादा बढ़ाया, आगे बढ़ाया, तरक्की की राह पर गामजन किया। लेकिन सही मानों में, हकीकी मानों में इसने तरक्की उर्दू अदब में की और आज भी उर्दू जुबान की वो आबरू बनकर क्या कर रही है, अपनी तरक्की के मनाजिल आज भी तय कर रही है। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जब भी उर्दू मेला, किताब मेला, उर्दू किताब मेला लगता है तो आने वाले गैर उर्दू दाबी सबसे पहले शायरी की बुक तलाश करते हैं। ऐलान हो जाए कि आज मुशायरा है तो इन्हें बगैर दावत चले हुए सिर्फ मालूम हो जाता है तो फौरन लोग वहाँ क्या हो जाते हैं, मैदान जो रहता है वो फौरन क्या हो जाता है, भर जाता है। ये मोहब्बत है गजल की, ये मोहब्बत है उर्दू की। गजल का पहला शेर मक्ता कहलाता है। जैसे हमने इब्तिदा में देखे कि गजल का जो पहला शेर होता है वो मक्ता होता है और मक्ता इसलिए होता है कि इसके दोनों मिसरे क्या होते हैं, हम काफिया होते हैं। जिसके दोनों मिसरे हम काफिया, हम रदीफ होते हैं। रदीफ वो लफ्ज या अल्फाज का मजमुआ है जिसे हर शेर के आखिर में दोहराया जाता है। अब एक होता है रदीफ और एक होता है काफिया। अब काफिया उसको कहेंगे जो हम काफिया अल्फाज रहेंगे उसको हम काफिया कहेंगे, और रदीफ उसको कहेंगे जो उसके साथ एक लफ्ज आता रहता है। जैसे किसी गजल का आखिरी लफ्ज आता है तो आखिर तक है आता रहता है। लेकिन जो काफिया रहता है वो हर शेर में बदलता रहता है, हर शेर में काफिया बदलता रहता है। लेकिन जो बदलता नहीं वो रदीफ रहता है, वो आखिर तक बिल्कुल बदलता नहीं है। तो रदीफ और काफिया के साथ गजल चलती है। फिर आगे, जिसका आखिरी हर्फ या आखिर के चंद हुरूफ यकसा होते हैं, जैसे दवा, जरा या मीर, पीर। तो जो ऐसे अल्फाज होते हैं ये आखिर में आ जाते हैं जिसमें शायर अपना, फिर आगे क्या दिया है, बाज गजलों में काफिये के साथ रदीफ भी होती है। काफिये जैसे पीर है, मीर है, अमीर है, ऐसे जो मीर आता है तो ऐसे जो लफ्ज आते हैं इसको काफिया कहेंगे। अकील है, शकील है, खलील है, जलील है, ऐसे बहुत से राइमिंग वर्ड्स हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं और अपनी गजलों में आते रहते हैं। जैसे आप लोग हम यहाँ आगे भी देखेंगे फानी बदायूनी की जो गजल है, उस गजल में पहली गजल में भी देखना चाहे आप तो पहली गजल में भी सफा नंबर 9 पे देख सकते हैं। वहां पे पहली गजल में होशियार है, उसके बाद बेजार है, फिर उसके बाद बीमार है, गमख्वार है, ये तमाम राइमिंग वर्ड्स है। और जो आखिर में आया जाता जाता जाता, नहीं जाता नहीं जाता नहीं जाता, ये पहली गजल में बार बार आया है, वो रदीफ है, ताकि हमको मालूम हो जाए रदीफ किसे कहते हैं और काफिया किसे कहते हैं। काफिया बदलता रहता है, राइमिंग वर्ड्स उसको कहा जाता है, हम काफिया लफ्ज कहा जाता है। फिर आगे उन्होंने दिया है कि बाद गजलों में काफिया के साथ रदीफ भी होती है, बाद में सिर्फ काफिया होता है, यानी बगैर रदीफ के भी गजल कही जाती है और कही जाती है, आपने इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद में सिर्फ काफिया होता है। गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है मक्ता कहलाता है। इससे पहले बता दिया कि मक्ता क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहां बात क्या हो जाती है, मुनक़ते हो जाती है, कता हो जाती है, खत्म हो जाती है, रोक दी जाती है। इसके लिए उस शेर को क्या कहेंगे, मक्ते का शेर। चाहे उसमें तखल्लुस शायर इस्तेमाल करे
या न करे तो उसको हम मक्ता कहेंगे। मजीद एक मक्ता कहकर गजल को आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसी 2 गजलें हो जाए तो 2 गजला, या 3 हो तो उसे से गजला कहेंगे। अगर ऐसे ही मक्ते के साथ और बढ़ाती जाए तो गजल को 2 गजला या से गजला, से यानी 3, 2 यानी 2 कहा जाता है। फिर उसके बाद एक गजल में एक गजल में एक से ज्यादा मतले कहे जा सकते हैं। कभी कभी एक गजल में हम एक से ज्यादा मतले कहे जाते हैं। जैसा हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, या बता चुका हूं मैं आपको इससे पहले कि जब पहला जो शेर होता है वो अगर मतला कहलाता है और दूसरा शेर भी हम काफिया होता है तो उसको हुस्ने मतला कहा जाता है। कभी कभी आप लोगों ने अगर वो अहमद फराज की गजलें पढ़ी होंगी या यूट्यूब पे देखी होंगी तो उसमें तो कभी कभी तो कई तसलसल के साथ कई मिसरे कैसे नजर आते हैं, मिसरे ने बल्कि कई अशर आपको हम काफिया नजर आते हैं। यहां देखो क्या बात बताई गई है, को आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसी 2 तरह की गजलें, एक गजल में एक से ज्यादा मतले कहे जा सकते हैं। गजल के तमाम अशआर हम वज़न होते हैं। हर गजल एक ही मखसूस बहर में होती है। अक्सर जो गजलें होती है किसी एक बहर में होती है। अब इससे पहले हम 12वीं की जमात में और 11वीं की जमात में, 11वीं और 12वीं दोनों जमात में हम देख चुके हैं कि बहर किसे कहते हैं। और बहर क्या होती है, जिसको हम लोगों ने दो मास का जो कवायद था उस कवायद में हम देख चुके तख्ती किसे कहते। तो बहर पढ़ चुके हम इससे पहले, बहरे मुतकारिब, मुसम्मन, सालिम और बहरे हजर, ये 2 बहरे हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। उसमें जो हिस्सा आता है वो तख्ती का हिस्सा आता है। उस तख्ती के हिस्से को हम बहर होती है जिसमें अरकान होते हैं, और उन अरकान को बहर किसी एक ही उन्वान पर या किसी एक बहर पर ही पूरी गजल लिखी जाती है। जैसे कोई एक गजल है, उस गजल को जो लिखा गया है वो किसी एक बहर के को मद्देनजर रखकर लिखा गया। उसके अरकान होते हैं, बहर के क्या होते हैं, अरकान होते हैं। अब अरकान जमा है रुकन की। अब इससे पहले आप देख चुके हैं कि जो अरकान होते हैं, रुकन होते हैं, फ़ौलुन फ़ौलुन फ़ौलुन। हमने पहले मिसरे को हल करने के लिए 4 मरतबा, दूसरे मिसरे को हल करने के लिए 4 मरतबा लिखा था। इसको हम अरकान कहते हैं, रुकन कहते हैं, फ़ाइलुन, फ़ाइलातुन या फ़ौलुन, फ़ाइलुन। तो ये तमाम चीजें तो अरकान होते हैं। तो किसी एक ही बहर पर पूरी गजल क्या की जाती है, लिखी जाती है। गजल का हर शेर अपनी जगह मुकम्मल होता है। गजल का जो शेर होता है वो अपनी मानी मुकम्मल करने के लिए दूसरे शेर का मोहताज नहीं होता। एक शेर में पूरा मजमून अदा कर दिया जाता है। बहुत से बड़ी बात अगर कहनी हो तो सिर्फ मुख्तसर और जामे अंदाज में गजल में कही जा सकती है या शेर में कही जा सकती है। शेर नज़म का भी हो सकता है, लेकिन गजल में जो ज्यादा चीजें बयान की जाती है वो जामे होती है। और जामे इसलिए होती है कि मुख्तसर 2 मिसरों में, कितने मिसरों में, सिर्फ 2 मिसरों में, जो 2 मिसरे होते हैं उन 2 मिसरों में ही वो बात अपनी पूरी कर देता है। ऐसे वक्त में शायर क्या करता है, अपने फन का कमाल दिखाता है। जैसे इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि जब हम गजल पढ़ते हैं या किसी तारीखी वाक़े की तरफ इशारा करना हो, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या है आग में गिरने का, तो उस आग में गिरने वाले वाक़ये को हम किस अंदाज में बयान करते हैं, कितना बड़ा इब्राहिम अलैहिस्सलाम का आग में डालने का जो वाक़या है, आग की तरफ वाला इशारा है, वो अगर बयान करना हो तो मुख्तसर वो शेर होता है कि आज भी जो हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आज भी हो जो बराहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। तो जो अंदाज होता है वो वाक़या पूरा इसमें आ जाता है। जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने हुकूमत जो दी थी उस तरफ अगर इशारा करना हो तो उस तरफ इशारा करने के लिए जो सनत तलवी का शेर इस्तेमाल किया जाता है वो इस तरह से होता है कि हर फूल की तकदीर में गुलदान नहीं होता, हर फूल की तकदीर में गुलदान नहीं होता, हर शख्स मुकद्दर का सुलेमान नहीं होता। तो ऐसे अशार जो होते हैं उन अशार में क्या किया जाता है, इशारा किया जाता है। तो शायर जो होते हैं वो मुख्तसर और जामे अल्फाज में अपनी बात मुकम्मल करते हैं और अशार में उस तरफ इशारा करके क्या कर देते हैं, उन अशार को मुकम्मल कर देते हैं। उसी उर्दू गजल का ये सबसे बड़ा कमाल होता है और अहम बात होती है शोराए कराम की। फिर उसके बाद
एक शेर में पूरा मजमून अदा कर दिया जाता है। एक शेर का दूसरे शेर से मानवी लिहाज से मरबूत होना जरूरी नहीं है। ये बात भी हम पहले देख चुके हैं कि पहले शेर का ताल्लुक दूसरे शेर से होना जरूरी नहीं है, दूसरे शेर का ताल्लुक तीसरे शेर से होना जरूरी नहीं है, बल्कि अशआर जो होते हैं वो अशआर मानवी एतबार से अलग अलग होते हैं, एक दूसरे से मिले होना जरूरी नहीं है। अगर गजल के तमाम अशआर आपस में मरबूत हो, एक ही मजमून को मुख्तलिफ अंदाज से बांध दिया जाए, या कोई ख्याल बतदरीज इर्तिका पाले, पूरी गजल में एक ही कैफियत शुरू से आखिर तक कायम रहे, तो उसे गजल मुसलसल कहते हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक मजमून या कोई एक उन्वान या कोई एक ही बात को गजल में तसलसल के साथ अगर बयान की जाए तो ऐसी गजल को गजल मुसलसल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गजल मुसलसल भी कहा जाता है। उर्दू शायरी में गजल की मकबूलियत देखते हुए, ये बहुत अहम बात और बहुत अदबी बात अभी जो यहाँ बयान की जा रही है वो की गई है। क्या बात बयान की गई है कि उर्दू शायरी में गजल की मकबूलियत देखते हुए प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी ने उसे बजा तौर से उर्दू शायरी की आबरू कहा है। यानी गजल को रशीद अहमद सिद्दीकी ने शायरी की क्या कहा है? आबरू कहा है। क्या कहा बोलो? आबरू कहा है। अब आबरू कहते हैं इज्जत को, कि ये जो शायरी पेश की जा रही है, जो शायरी पेश की जा रही है उसमें गजल के बगैर शायरी जो शायरी है वो अधूरी है। मतलब गजल जो है वो उर्दू शायरी की क्या है? आबरू कहा गया है। अब जो उर्दू गजल की क्या ये मकबूलियत है। अब देखते हैं इसमें जो शख्सियात है, ये जिनकी गजलें हमको पढ़ना है, जिनकी गजलें हमको पढ़ना है, उसमें सबसे पहला नाम है फानी बदायूनी का। इसका नाम है फानी बदायूनी का। फानी बदायूनी का पहला नाम है। बदायूं के रहने वाले थे, इसके बदायूनी कहलाते। फानी उन्होंने अपना तखल्लुस लगाया था, क्योंकि अभी शख्सियत और फन के बारे में हम देखते हैं। जैसे इससे पहले हमने मखतूम निगारी में गालिब के फन को देखा था, उनकी शख्सियत को देखा था, लिहाजा आज हम यहाँ देखेंगे फानी बदायूनी की शख्सियत और उनका फन। मुख्तसर मालूमात लेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला उनके बारे में जो आपको नोट्स दिए जाएंगे वो तफसीली रहेंगे। फानी बदायूनी का नाम शौकत अली खान था। फानी तखल्लुस करते थे, नाम तो शौकत अली था, लेकिन फानी अपना तखल्लुस, फना होने वाला, अपने आप को फना होने वाला कहते थे कि दुनिया की हर चीज क्या है? फानी है। तो अपना तखल्लुस फानी रखते थे, और फानी नहीं बल्कि और भी कोई तखल्लुस रखना कोई शायर चाहे तो बिल्कुल रख सकता है। 1869 ईस्वी में इस्लाम नगर में पैदा हुए। ये बदायूं का एक कस्बा है। क्या बोले? कस्बा है। अब कस्बा कहते हैं गांव को। बदायूं इलाका जो है उस इलाके में कस्बा है, गांव है, वहां वो क्या हुए? बोलो पैदा हुए। इस्लाम नगर एक क्या है? बोलो इलाका है, उस इलाके में वो कस्बे में पैदा हुए। फिर इसका यूसुफ सही के कबीले जरखील से उनका सिलसिला कायम होता है। उनकी इब्तिदाई तालीम घर पर ही हुई। पुराने दौर में आपने देखे होंगे कि बच्चों को जो तालीम दी जाती थी वो घरों में दी जाती थी। आज भी अगर घरों में इब्तिदाई तालीम दी जाए तो घर में बच्चा जो रहता है वो माँ की गोद में पलता बढ़ता है, तो माँ उसको जो तालीम देती है वो बच्चे के जहन में हमेशा रहती है। यानी इब्तिदाई तालीम का नज्म आज भी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में घरों में ही होता है। तो उस दौर में भी घरों में इब्तिदाई तालीम का उन्हें नज्म किया गया था। फिर उसके बाद फिर वो बदायूं में ही हाई स्कूल में दाखिल हुए। उसी इलाके में उनको हाई स्कूल में दाखिल किया गया था। 1897 ईस्वी में एंट्रेंस पास किया और बरेली आ गए, जिसकी वो ये वजह बताई जाती है कि वो अपने वालिद से बाज मामलात में इख्तिलाफ रखते थे। यानी इनकी एक वजह बदायूं में आने की ये भी बताई गई है कि वो जो थे अपने वालिद से इख्तिलाफात रखते थे, और इख्तिलाफात की वजह से उन्होंने अपना आबाई घर, आबाई वतन छोड़कर, आबाई इलाका छोड़कर वो इस तरफ चले आए और वहीं पे वो रहने लगे। चूंकि उनके वालिद उन्हें शेर कहने से रोकते थे। अब मामला ये था कि वालिद का कहना था कि आप शेर मत हो, और बेटा जिद पे था कि मैं शेर कहूंगा, और आगे चलकर बहुत बड़ा शायर बन गया। और आज भी उनके गजल और आज भी उनकी शायरी बड़े अदब के साथ अदबी दुनिया में लोग क्या करते हैं? समाप्त करते हैं, और आज भी उनकी गजलों को पढ़ते हैं निसाब में। जैसे हम निसाब में पढ़ रहे हैं, और निचली जमातों में भी उनकी गजलें जो है वो निसाब में शामिल है। फिर आगे
इसलिए उन्होंने अलग हो जाना बेहतर समझा। उनकी शादी कम उम्री ही में अपनी चचाजाद बहन से तय पाई। चचाजाद बहन से कम उम्री में, यानी उनकी उम्र बहुत कम थी और कम उम्र थे, और उसी वक्त उनकी बहन यानी कम उम्र थे और चचाजाद बहन जो थी उनकी, उनसे उनकी शादी तय हो गई थी। बचपन की शादी का रिवाज नहीं था, लेकिन मामला ये था कि बच्चों का जो इंगेजमेंट होता है अपनी जुबान में, तो उनका जो रिश्ता होता है वो बहुत जल्द तय किया जाता था। तो इनकी भी उनकी चचाजाद बहन से उनकी शादी क्या हुई, तय हुई। लेकिन शादी न हो सकी, किसी वजूहात के बिना पे शादी का तय होना, सब कुछ रिश्ता तय होना, सब कुछ हुआ, लेकिन किसी वजह से ये शादी नहीं हो पाई। फिर आगे क्या हुआ, इसके बाद फानी ने 1903 ईस्वी में इंतजार अली खां की साहबजादी शाह जमानी बेगम से अक़्द किया। उन्होंने क्या किया, अक़्द किया। कब किया, 1903 ईस्वी में। और पैदा कब हुए थे, 1979 ईस्वी में पैदा हुए थे। 1979 ईस्वी में पैदा हुए थे और 80 ऊपर के 20 और ये तकरीबन 24 साल की उम्र में उनका अक़्द हुआ। अक़्द होना, शादी हुई थी। क्या हुई, उनकी शादी हुई। पैदाइश हुई थी 1879 ईस्वी में और उनका अक़्द हुआ 1903 ईस्वी में। मतलब यह है कि 24 साल की उम्र में उनका अक़्द हुआ। अक़्द यानी क्या, उनका निकाह हुआ। फिर उसके बाद फानी बदायूनी हाई स्कूल में मुदर्रिस हो चुके थे। फिर उन्होंने क्या किया, दर्स व तदरीस को अपनाया, यानी वो टीचर बन गए और मुदर्रिस बन गए। दर्स व तदरीस का काम शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया, टीचर बन गए, दर्स व तदरीस से मुंसलिक हो गए। फिर तरक्की करके डिप्टी सब इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल हो गए। फानी शायराना मिजाज रखते थे, लिहाजा मुलाजिमत उन्हें रास न आई। यानी जो फानी जो थे, उनका जो मिजाज था वो शायराना था। हर वक्त शायराना मिजाज रखने की वजह से और हर वक्त गज़ल के बारे में, शायरी के बारे में सोचने की वजह से उन्होंने जो मुलाजिमत इख्तियार की थी वो मुलाजिमत उन्होंने छोड़ दी और ये वाबस्तगी खत्म कर दी। लेकिन रोजी रोटी के हुसूल के लिए तो कुछ करना ही था, लिहाजा वो अलीगढ़ आए, अलीगढ़ चले आए और यहाँ वकालत का इम्तिहान पास किया। फिर बैरिस्ट्री भी शुरू कर दी। फिर उन्होंने अपना इलाका छोड़ दिया और इलाका छोड़कर अलीगढ़ आ गए। पहले दर्स व तदरीस से वाबस्ता थे, वो भी छोड़ दिया उन्होंने। फिर अलीगढ़ आए और वकालत करना उन्होंने क्या कर दिया, शुरू कर दिया। इसमें एक लफ्ज़ हुसूल आया, यानी रोजी रोटी के हुसूल में, रोजी रोटी के हुसूल के, और हुसूल के माने होते हासिल करना, यानी जिंदगी गुजारने के लिए कुछ तो करना चाहिए था। इसके लिए उन्हें रोजी रोटी को हासिल करने के लिए वकालत लॉ क्या किया, उन्होंने शुरू कर दिया। फानी के हालात ऐसे रहे थे कि उनकी अकबी जमीन में हुस्न यास का पैदा होना एक अम्र लाजमी था। हुस्न यास, यास कहा जाता है नाउमीद को, हुस्न कहा जाता है रंज व गम को, यानी रंज व गम, नाउमीद जो थी उनकी शायरी में नजर आती है। हुस्न मलाल जिसको कहा जाता है, हुस्न मलाल है रंज व गम, या फिर हुस्न यास कहा जाता है। यास यानी क्या, नाउमीद। फिर उसके बाद इसलिए फानी की शायरी का मजमूई मजाज हुस्न यास ही है, लेकिन ये यासियत मीर से मुख्तलिफ है। यानी ये जो यासियत है वो मीर से मुख्तलिफ है, क्योंकि मीर की जिंदगी में जो गुजरा उन्होंने अपनी शायरी में पेश किया। हालात वैसे बहुत यानी हिम्मत शिकन हालात थे उनके, गुर्बत का बोलबाला था, इसके लिए उनकी शायरी में बहुत ज्यादा गरीबी झलकती नजर आती है। यास की बातें, गुर्बत की बातें मीर के इसमें नजर आती है। इसके लिए आपने देखा होगा, सुना होगा मीर के बारे में वो शेर कि क्यों उदास हो मीर के अशआर की तरह, क्यों उदास हो मीर के अशआर की तरह, लोग चेहरों को भी पढ़ते हैं अखबार की तरह। फिर आगे उन्होंने दिया कि मीर की दिलदोजी और दिलसोजी उनके खमीर का हिस्सा है, यानी उनके अंदर जो रंज व गम शायरी में दिया गया है ये उनकी हालात जिंदगी की अक्कासी करती है। फानी खारजी उसके बाद खमीर का हिस्सा है। खारजी और दाखिली दोनों ही कैफियतें मीर को गम में मुब्तला करती है। यानी मीर जो जिंदगी थी उनकी निजी जिंदगी भी क्या उसको कहेंगे, तकलीफ दा थी,
باہر کی زندگی بھی ان کی تکلیف دہ تھی، غربت کی تھی، غریبی کی تھی، اس کے لیے اندرونی اور داخلی اور باہری، اندرونی اور باہری جو زندگی تھی یہ سب تکلیف دہ تھی۔ اس کے لیے ان کی شاعری میں، ان کی غزلوں میں، ان کے اشعار میں ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ یاسیت نظر آتا ہے۔ لیکن دراصل میر کا حزن و ملال زندگی سے کشید کیا ہوا ان کا تجربہ ہے، یعنی زندگی نے جو ان کو دیا تھا وہ انہوں نے پیش کیا۔ جیسے ساحل لدھیانوی نے اپنی جب پہلی کتاب لکھی تھی جس کا نام، ساحل لدھیانوی جو اپنی کتاب لکھی تھی جس کتاب کا نام تلخیہ ہے، تو پہلے ہی پیج پہ انہوں نے ایک شعر لکھا ہے، اور شعر بہت جامع شعر ہے، اور شعر یہ ہے کہ دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں، دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے لوٹا رہا ہوں میں۔ تو اسی بات کو میر تقی میر نے اپنی شاعری میں ڈھالا تھا۔ جبکہ فانی نے جو زندگی گزاری ہے اس میں یاسیت اور محرومیت کا احساس اوڑھا ہوا ہے۔ یہاں ایک بات بتائی گئی کہ فانی نے جو کچھ چیزیں پیش کی تھی، وہ فانی کی جو چیزیں اشعار میں پیش کی گئی تھی وہ اشعار میں پیش کی ہوئی اوڑھی ہوئی چیزیں تھے، ان کے زندگی پہ گزری ہوئی چیزیں نہیں تھی۔ اسی لیے میر کچھ ایسا نتیجہ اخذ نہیں کرتے موت کے اشعار کی نوعیت جو موت کے طہارت پر ختم ہوتی ہے، لیکن ایسے موضوعی مباحث فانی کو پوری طرح گرفت میں نہیں لیتے۔ یعنی یہاں موازنہ کیا گیا میر کا اور فانی کا۔ میر تھے، فانی نہیں تھے، مطلب فانی فنا تو الگ بات ہے، لیکن ان کی شاعری زندہ ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں میں اس کے اندر تفاوت تھا، شاعری میں تفاوت تھا، خیالات میں تفاوت تھا، اور لکھنے کے انداز میں، خیالات میں ایک دوسرے میں بہت زیادہ فرق تر ہونا بھی چاہیے، کیونکہ انسان الگ الگ ہے اور انسان کی سوچ، انسان کی فکر بھی الگ ہوا کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد فانی کے یہاں قداخنگی کے ساتھ نغمگی ملتی ہے، یعنی جہاں حالات کا ذکر ہوتا ہے وہاں نغمہ بھی سنائی دیتے ہیں، گیت وغیرہ بھی نظر آتے ہیں، یعنی تھوڑی سی یعنی جہاں خشکی نظر آتی ہے وہاں تری بھی نظر آتی ہے، جہاں غم کا ذکر ہے وہاں خوشی کا ذکر بھی نظر آتا ہے، جسے عمومی اصطلاح میں شعریت کہہ سکتے ہیں۔ فانی اپنے اشعار سے دوسروں کے دلوں میں وہی جذبہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو ان کے دل پر گزرتی ہے یا گزری ہے، یعنی فانی کے دل پہ جو حالات آئے ہیں، دل پہ جو گزری ہے، دل کے جو خیالات ہیں وہ اپنی شاعری میں پیش کرتے ہیں۔ یہی ہنر فانی کو اردو ادب میں باقی رکھنے کے لیے کافی ہے۔ اب دیکھتے ہیں بار بار ان کی جب غزلوں کا مطالعہ کریں گے تو یہ بات بالکل واضح ہو جائیں گے کہ جو بات ان کے دلوں میں گزرتی تھی، جو خیالات ہوتے تھے، ان کے تصورات ہوتے تھے، جو باتیں ہوتی تھی، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اشعار میں پیش کرتے تھے۔ بعض ناقدین بنا ہے تنقید کرنے والوں سے، یعنی ناقدین یعنی تنقید کرنے والوں کو ناقدین کہا جاتا ہے، کریٹیسائز کرنے والے۔ تو بہت سے ناقدین نے، تنقید کرنے والے لوگوں نے کیا کیا اب یہاں بتایا جا رہا ہے۔ بعض ناقدین فانی کے یہاں فلسفے کے نکات بھی ڈھونڈتے ہیں، یعنی بعض ناقدین جو ہے وہ فانی کے یہاں کیا ڈھونڈتے ہیں؟ فلسفے کے نکات ڈھونڈتے ہیں۔ نکات یعنی باتیں ڈھونڈتے ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو تلاش کرتے ہیں کہ یہاں فلسفے کا کوئی ذکر ہے یا نہیں ہے۔ اور بعض مماثلت غالب کے یہاں بھی انہیں لے جاتی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہے جو ان کو غالب سے قریب کر دیتی ہے، کچھ اشعار ان کے ایسے ہیں جن اشعار کو پڑھنے کے بعد یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس طرز پر غالب نے بھی اشعار اپنے کہے تھے، یہاں بھی انہیں لے جاتی ہے۔ دراصل فانی کی شاعری بطور خاص فکر کی ویسی شاعری نہیں ہے جسے فلسفیانہ کہہ سکتے ہیں۔ دیکھو، ہر شاعر کا اپنا کمال ہوتا ہے، ہر شاعر کی اپنی شاعری ہوتی ہے، ہر شاعر کی اپنی نجی زندگی ہوتی ہے، ہر شاعر کی اپنی خارجی زندگی ہوتی ہے، اور ہر شاعر کے خیالات میں فرق ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے، تاکہ ان کی شاعری کیا ہو جائے؟ مقبول عام ہو جائے، لوگوں کو ان کے خیالات سے کیا ہو جاتا ہے؟ واقفیت حاصل ہو جاتی ہے۔ ان کے اشعار پڑھنے کے بعد، ان کے اشعار سننے کے بعد لوگ ان سے واقفیت حاصل کرتے ہیں کہ یہ کس طرز کے اشعار کہتے ہیں، یا ان کے طرز میں کن کن باتوں کا ذکر ہوتا ہے۔ پھر اور ملتی ہے کہ اس کے بعد اگر کوئی فلسفیانہ یا اگر کوئی فلسفہ ان کے یہاں موجود ہے تو وہ فلسفہ اختتام زندگی ہے، یعنی ان کے یہاں جو فلسفے کا ذکر ہے وہ آخرت کی زندگی ہے،
फलसफा यानी जिंदगी खत्म होने वाली है। कभी इंसान जिंदगी में हमेशा रहने वाला नहीं है, बल्कि मौत आकर रहेगी, मौत बरहक है, एक वक्त आ जाएगा जिंदगी खत्म हो जाएंगे। तो वही उनका फलसफा है कि दुनिया फानी है। क्या है? दुनिया फानी है, और फानी ही उन्होंने अपना तखल्लुस रखा है। वो हर इस बात को हमेशा नजर के सामने रखते थे कि जो चीज मुझको मिली है, जो नेमत मेरे पास आई है, जो नेमतें मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, या जिन नेमतों से अल्लाह ने मुझको सरफराज किया है, वो तमाम नेमतें क्या है? फानी है। यानी हमेशा फना होने वाली चीजों को नजर के सामने रखते हैं। इससे मुराद आखिरत उनके हमेशा नजर के सामने रखती थी। यानी आखिरत को हमेशा वो सामने रखते थे कि आज मैं जिंदा हूं, कल मैं भी क्या बन जाऊंगा? फानी बन जाऊंगा, फना हो जाऊंगा। मेरी नेमतें क्या हो जाएंगी? फना हो जाएंगी, और दुनिया की हर चीज दुनिया से क्या होने वाली है? फना होने वाली है। कुछ और नहीं, फानी हालात के जब्र को कबूल करते हुए उसकी तत्हीर अपने अशार में करना चाहते हैं। यहाँ एक अहम बात बयान की गई कि फानी की खुसूसियात में, फानी की शायरी की खुसूसियात में ये बहुत बड़ी और अहम खुसूसियत ये थी कि फानी बदायूनी जो हालात सहते थे, जिन हालात से उन्हें दो चार होना पड़ता था, जिन हालात को बर्दाश्त करते थे, जब्र करते थे और उन पर जुल्म सितम ढाया जाता था, उसको बर्दाश्त करते थे, उन्हीं हालात को वो अपनी शायरी के जरिए तस्हीर करते थे, तशहीर करते थे और लोगों के सामने क्या करते थे? पेश करते थे। और एक बहुत अहम अंदाज है, अच्छा अंदाज है कि जो हालात उनके सामने आए हैं, उन हालात का जिक्र वो अपनी शायरी में करते थे। फिर आगे दिया उन्होंने कि इब्तिदाई इश्क की नाकामयाबी उनके सामने हर मकसद को बेकार महज समझने पर मजबूर करती है। क्या उन्होंने दिया कि इब्तिदाई इश्क की नाकामयाबी, जो भी इब्तिदाई इश्क था, उस इश्क की नाकामयाबी क्या करती है? इंसान को अपने सामने हर मकसद को बेकार महज समझने पर मजबूर करती है। कोई नाकामी हमारे सामने आ जाए, कोई भी हो, इश्क की हो, दुनिया की हो, दुनिया की लज्जतों की हो, दुनिया की नेमतों की हो, दुनिया की मालो दौलत और जर की हो, कोई भी दौलत या कोई भी चीज हो, ऐसी चीजों में, ऐसी दौलत में और ऐसी बातों में महज उसको नाकामी समझना और उसके आगे तमाम चीजों को कमतर समझना, ये अच्छी बात नहीं थी। तो उन्होंने क्या महज समझने पर मजबूर करती है। उनकी शायरी में ये बातें झलकती है कहीं कहीं। फानी की वफात 27 अगस्त 1941 में हुई, यानी तकरीबन वो आज से ये 41 यानी 60 और 20 यानी 60 और 20 80 साल पहले वो दुनिया से क्या हुए? चले गए। 1941 में आजादी मिलने से पहले वो दुनिया से चले गए। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनकी कब्रों को नूर से भर दे, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। अब हमने जो कुछ पढ़ा है ये सिर्फ उर्दू गजल की इब्तिदा, उर्दू गजल की मुख्तसर तारीख जिसको हमने देखा। फिर उसमें उर्दू गजल में हमको पढ़ना फानी बदायूनी के अशआर पढ़ना है, मतलब उनकी गजलें पढ़ना है। इसलिए यहाँ हमको फानी बदायूनी की शख्सियत और फन दिया गया था। आइंदा इंशाअल्लाह इसके बारे में आपको मज़ीद मालूमात भी दी जाएंगे। इसके बाद इनकी गज़लों को भी आपको पढ़ाया जाएगा और इसके बाद इंशाअल्लाह ताला आपको भी नोट्स इसके भेज दिए जाएंगे, रवाना किए जाएंगे। जो भी नोट्स आपको रवाना किए जाते हैं तो साथ में पेपर का नाम, क्लास, पेपर नंबर दिया जाता है, सेमेस्टर नंबर दिया जाता है। तो उसके लिए जो बयान आपने लगाए हैं, नोटबुक जो लगाए, उसी नोटबुक में, जैसे इससे पहले जो कुछ दिया था मैंने पेपर नंबर 2 में दिया था, लेकिन यहाँ जो कुछ दूंगा वो पेपर नंबर 3 में है। तो यो इसके बाद इस वीडियो के साथ जो आपको नोट्स रवाना किए जाएंगे, इसके बाद रवाना किए जाएंगे, वो पेपर 3 में लिखने आए, वो उर्दू गज़ल के मुतालिक रहेंगे। उसकी अहमियत है, उसकी गज़ल की तारीख है, फिर फानी बदायूनी का फ़न है, उनकी शख्सियत है, उनके बारे में कुछ और मालूमात दी जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।